નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ. સંદેશ વિશેષ સાથે હું છું અંકિત. આરએસએસ એટલે દેશ સહિત દુનિયાનું સૌથી મોટું હિન્દુ સંગઠન. જ્યારે પણ આરએસએસનું નામ આવે એટલે સૌથી પહેલા હિન્દુત્વની જ વાત આવે. ત્યારે દશેરા એટલે આરએસએસનો સ્થાપના દિવસ. આરએસએસ હિન્દુત્વની વાત ન કરે એ તો આશ્ચર્ય જ કહેવાય. મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં યોજાયેલા 96મા સ્થાપના દિવસના કાર્યક્રમમાંથી ફરી એ હુંકાર થયો, આપણે હિન્દુ. આજે વિજયાદશમીની સાથે સાથે સંઘનો સ્થાપના દિવસ પણ છે. 96મા સ્થાપના દિવસે ભાગવતના ભાષણમાં જોવા મળી હિન્દુત્વની રાષ્ટ્રહિતની ઝલક. બાળકથી લઈને દેશના દરેક નાગરિકની ચિંતા, આતંકથી લઈને આર્થિક હિતોની પણ ચિંતા, ખતરાથી લઈને રક્ષણની પણ વાત, સાથે જ હિન્દુ સમાજને ગણાવ્યા તમામ મુશ્કેલીઓના તારણહાર. અને એટલા માટે જ આજે વાત કરવી છે આપણે હિન્દુ. है चरण अगणित ध्येय के पथ पर निरंतर, ध्येय के पथ पर निरंतर. આ કોઈ શબ્દો નથી, આ તો એકતાનો નારો છે. 96 વર્ષથી હિન્દુઓને એક રાખવાનો ધ્યેય છે. હિન્દુસ્તાનમાં હિન્દુઓને બચાવવાનું આ પ્રણ છે. ભારતમાં રહેતા તમામની ચિંતાનો સંકલ્પ છે. સાથે જ ભારતને દુનિયામાં મજબૂત બનાવવાનો સંકલ્પ છે. આરએસએસ આ કોઈ નામ નથી, આ કોઈ સંગઠન નથી, આ કોઈ પાર્ટી નથી, પરંતુ આ તો છે હિન્દુઓને એક કરવાનો જરિયો. જ્યારે જ્યારે પણ સમાચારોમાં આ નામ આવે ત્યારે હિન્દુઓની વાત નીકળે છે. ત્યારે વિજયાદશમી એટલે કે આરએસએસનો સ્થાપના દિવસ. મહારાષ્ટ્રના નાગપુરમાં યોજાયેલા 96મા સ્થાપના દિવસે આરએસએસના સરસંઘ ચાલક મોહન ભાગવતે આપેલા નિવેદને ફરી એક વખત દેશમાં હિન્દુઓની એકતાની વાત કરી. સાથે જ દુનિયાની સામે દેશને મજબૂત કરવા માટે શું શું આવશ્યકતા છે તેનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો. છેલ્લા કેટલાક સમયથી મોહન ભાગવતના કેટલાક નિવેદનોએ રાજનીતિમાં વિવાદ સર્જ્યો છે અને આજે પણ ભાગવતે એ તમામ નિવેદનોનો ઉલ્લેખ પોતાના ભાષણોમાં કર્યો. મોહન ભાગવતે આરએસએસના 96મા સ્થાપના દિવસે સ્વાતંત્ર્યનું મહત્વ સમજાવતા દેશવાસીઓને એક થવા આહવાન કર્યું. સાથે જ કહ્યું કે દેશમાં ભેદરહિત સમાનતા સ્વાતંત્ર્યના ટકવાની ગેરંટી છે. बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए, समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए. व्यवस्थागत व्यवहार भी बदले, इसलिए मंदिर पानी स्मशान सबका एक हो, यहाँ से प्रारंभ हो, इसका प्रयास भी अनेक वर्षों से स्वयंसेवक कर रहे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे. सब प्रांतों में प्रयास चल रहा है. भेद रहित समताधिष्ठित समाज स्वातंत्र के टिकने की गारंटी है और राष्ट्र के एकात्मता का अधिष्ठान है. स्वतंत्र जीवन कैसा होता है, स्वतंत्रता क्या है? सबके सुख की कल्पना है. मंत्र पुष्प में हम कहते हैं अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधना सधना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया. सर्वत्र का भला, ऐसा कहते. सबके सुख की कल्पना, किसी को नहीं छोड़ा, वसुधैव कुटुंबकम मानकर सब जिसमें सुखी हो और सबको एक साथ सुखी करने वाला, मनुष्य मात्र के तीनों पुरुषार्थ एक साथ साधने वाला, मनुष्य समूह सृष्टि को एक साथ सुखी कर सकने वाला, अर्थ कामों को नियंत्रण में रखकर मोक्ष की तरफ चलाने वाला, यह जो धर्म है उस धर्म का आविर्भाव अपने यहाँ हुआ. वो अध्यात्म आधारित है, अनुभूति आधारित है. આ સાથે જ મોહન ભાગવતે વધુ એક વખત નિવેદન આપ્યું કે ભારતમાં વસતા તમામ લોકો હિન્દુ પૂર્વજોના વંશજ છે. सब अपने उन हिंदू पूर्वजों के वंशज है जो इस
विविधता को एकता का ही आविष्कार मानकर सबका स्वीकार सम्मान करते थे, आपस में प्रेम से मिलजुल कर रहते थे और सभी एक दूसरे का आदर करके चलते थे। उन्हीं हिंदू पूर्वजों को सब पहुंचे जाए। वही भारतवर्ष सबकी मातृभूमि है, जिसके सिवाय किसी को गति नहीं है और कहीं। મોહન ભાગવતના આ નિવેદનને લઈને અનેક વખત વિવાદો થતા રહ્યા છે। કેટલાક લોકો તેમના સમર્થનમાં જોવા મળ્યા છે તો કેટલાક લોકો ભાગવતના આ નિવેદનનો વિરોધ કરે છે। તેમ છતાં ભાગવતે ફરી આ નિવેદન આપીને પુરવાર કર્યું કે પોતાના નિવેદન પર તેઓ કાયમ છે। मोड़ की बात हमेशा भगवत करते हैं। कभी बोले डीएनए हमारा एक है, लिंचिंग करने वाला गलत है। ये एक ही सांस में ये तो हमेशा रंग बदलते रहते हैं ना अपना। कभी एक बात बोलते हैं, कभी एक बात बोलते हैं। ये तमाम के तमाम संघी लोग जो होते हैं वो हिस्ट्री के बड़े वीक होते हैं। हिस्ट्री अगर पढ़ लेते तो मालूम होता कि वेस्ट कोस्ट पर इस्लाम पहले आया, इन्वेडर से नहीं आया। આ પ્રસંગે ભાગવતે એ વાતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો જેના કારણે આવનારા સમયમાં હિન્દુઓને ખતરો पैदा થઈ શકે છે। भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की व्यवस्थाओं की सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। इतने प्राचीन जीवन से दुनिया देख रही है कि उस जीवन में इतने लंबे समय से चलते हुए मूल्य है। मनुष्य जीवन को स्थिरता देके सुख देते हैं, टूटन से बचाते हैं, अधपतन से बचाते हैं। ऐसे मूल्यों से युक्त हमारा जीवन है। उन मूल्यों पर हमला होता है, बोल के भी होता है, निंदा करके भी होता है और विभिन्न माध्यमों से बहुत सूक्ष्म रीति से भी होता है। अभी हमारे देश में, हमारा युवाओं का देश है, 56-57% युवा है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, उनको खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे। कितने हाथ लगेंगे, कितने लोगों को खिला सकेंगे और उस समय जितने लोगों को खिलाना है उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, दोनों बातों का विचार करना पड़ेगा। 50 साल आगे तक का विचार करके एक नीति बनानी चाहिए और उस नीति को सब पर समान रूप से लागू करना चाहिए। વસ્તી નિયંત્રણની વાત સાથે મોહન ભાગવતે દેશમાં વધી રહેલી કટ્ટરતાનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો। ભાગવતે કહ્યું કે કલમ 370 હટ્યા બાદ કાશ્મીરમાં સામે આવી રહેલી ઘટના ટાર્ગેટ કિલિંગ છે, જેના દ્વારા કાશ્મીરમાં વસતા હિન્દુઓમાં ડર ફેલાવવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે। પરંતુ કાશ્મીરના હિન્દુ હવે ડરતા નથી। સાથે જ સરહદ પાર થઈ રહેલ ભારતને તોડવાના પ્રયાસોનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો। દેશે કોની સામે અને કેટલું સતર્ક રહેવું જોઈએ તેનું સૂચન પણ કર્યું। वायव्य सीमा के पार तालिबान खड़ा हो गया। अब तालिबान का पूर्व चरित्र क्या है हम सब जानते हैं और उसकी जो बातें हो रही है वो दो प्रकार की हो रही। कभी कहता है कि अच्छे रहेंगे, कभी कहता है कि नहीं हम वही है पहले से। तो इसका एक स्पष्ट संकेत है कि हमको सावधान रहना चाहिए। अब तालिबान बदला भी होगा, पाकिस्तान बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। चीन का इरादा भारत के बारे में बदला है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए यह मानते हुए भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, बुरा से बुरा आदमी भी बदल सकता है, बातचीत से, संवाद से बातें हल होती है, प्रेम से, अहिंसा से मामला ठीक हो सकता है। इसको मानना चाहिए, इसके प्रयास भी जारी रखने चाहिए, लेकिन अपनी सावधानी, अपनी तैयारी को पूर्ण रखते हुए हमको सजग भी रहना चाहिए। હિન્દુ સમાજ પર તોળાતા ખતરાને ટાળવા માટે અને દેશને બચાવવા માટે હિન્દુ સમાજની એકતા જરૂરી છે। ભાગવતે દેશમાં વસતા તમામ હિન્દુ સમાજને એક થવાનું આહવાન કરવાની સાથે વધી રહેલી કટ્ટરતા અને હિન્દુ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓને ડામવા માટે હિન્દુઓને જગાડવાનું પણ આહવાન કર્યું। સાથે જ કહ્યું કે આ માટે આરએસએસ તમામ પ્રયત્નો કરી રહ્યું છે। जो हाथ उठाए उसका हाथ न रहे इतना सामर्थ्य होना चाहिए, लेकिन सामर्थ्य का उपयोग क्या करना चाहिए? दुर्बलों की रक्षा। शील और शक्ति को साथ में लेकर हिंदू समाज को चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया दुष्टों की है, वो बिना शक्ति सत्य को भी नहीं मानती।
तो हिंदू समाज को अपने भेद भूलकर संगठित होना पड़ेगा, शक्ति संपन्न होना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू समाज की श्रद्धा जगे, हिंदू समाज का बल जगे, हिंदू समाज के लोगों के आपत्तियों का निवारण हो, उनको श्रद्धा मिले, उनको सहारा मिले। इस दृष्टि से हिंदू समाज की ये जो सारी व्यवस्थाएं आज भी है, पतित हो गई है, उनको ठीक करने के लिए हिंदू को जगाना पड़ेगा। क्योंकि हिंदू समाज का ऐसा होना ही सारी बातों का आधार है। हमारे आदर्श ऐसे मुसलमान होंगे जो देश के प्रति न्यौछावर हो गए। हमारा जीवन वैसा बनना चाहिए। हिंदू समाज अपने आप को संगठित शक्ति संपन्न बनाकर इस अपनत्व की भाषा से लोगों को समझाता है, तो अपने देश में लोग समझ जाएंगे कि आतंक, कट्टरता, द्वेष और स्वार्थ के समय में दुनिया में कोई नहीं है जो इससे तारेगा। केवल वह हिंदू समाज है वो जो सबको स्वीकार करता है, और वो शक्ति संपन्न है, वो इस दायित्व का निर्वाह कर सकता है। यह भारतीय संस्कृति सबको दे सकता है, उसमें वह बल खड़ा हो गया है। इस बल को खड़ा करना अपना काम है। समाज के नाते सारी बातों का उपाय करने के लिए सामूहिक कार्य करने का अभ्यास करना होगा। सामूहिकता से चलने की स्वभाव में आदत डालनी पड़ेगी। यह बल किसी की विरोध और प्रतिक्रिया में नहीं है। हमारी फूट के चलते हमको तोड़कर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करने के लिए सब लोग तात्पर है। इसको समझते हुए, और ये हमारा स्वभाव होना चाहिए हिंदू के नाते, संगठित रहना, बल संपन्न रहना, संपूर्ण मानवता के लिए अपने बल का उपयोग करना। ये कर्तव्य निर्वाह करने के लिए ऐसे हिंदू समाज को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जागरूक, संगठित, बल संपन्न और सक्रिय हिंदू समाज ही सब समस्याओं का समाधान है। ભાજપ અને આરએસએસ એક સિક્કાની બે બાજુ છે એવું આખો દેશ માને છે, પરંતુ કેટલીક વખત એવું પણ જોવા મળે છે કે આરએસએસની વિચારધારા ભાજપ શાસનથી વિપરીત હોય છે અને આરએસએસ ભાજપ સત્તાધીશોના વિરોધમાં પણ પોતાનું મત રજૂ કરે છે અને આવું જ ભાગવતના આ નિવેદનમાં જોવા મળ્યું। દેશમાં વધી રહેલી કેટલીક અનિયંત્રિત પ્રવૃત્તિને લઈને ભાગવતે તંત્રની નિંદા કરતા કહ્યું કે આ તમામ વસ્તુ પર નિયંત્રણ લાવવું પડશે, नहीं तो देश की विकास यात्रा में अवरोध पैदा थशे। नियंत्रण नहीं है उसका, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, उस पर कैसे कैसे चित्र आते हैं, क्या क्या आता है। अभी तो कोरोना में बालकों के हाथ में भी मोबाइल आ गया और ऑनलाइन तो देख ही रहे, और क्या देखते क्या नहीं इसका कोई नियंत्रण नहीं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्या दिखाना इसका भी कोई नियंत्रण नहीं। देश में तरह तरह के नशीले पदार्थ आते, उनकी आदतें बढ़ रही है। वो कैसे रोकी जाए, कैसा हो पता नहीं। उच्च वर्ग से लेकर तो बिल्कुल आखिरी आदमी तक समाज के जितने भी स्तर है, सब में भयंकर व्यसन। और उस व्यापार से आने वाला पैसा किसके हाथ में जाता है हम सबको पता है। देश विरोधी कार्यों में उसका उपयोग होता है। सीमा पार के देश उसको प्रोत्साहन करते हैं। अनियंत्रित बातें भी बढ़ रही है। बिटकॉइन जैसी करेंसी है, किस राष्ट्र का, किस नियम का उस पर नियंत्रण है मुझे नहीं पता। इन सब बातों को नियंत्रित करना, समाज के हित में चलाना, ड्रग्स जैसे व्यसनों का पूर्ण निराश हो इसका प्रयास करना, ये शासन को करना चाहिए, करना पड़ेगा। परंतु शासन तो अपना काम आज नहीं कल करेगा, करने का प्रयास कर भी रहा है। वो यशस्वी आज न कल होगा, परंतु तब तक के लिए इसका बचने का क्या, और बाद में भी बचने की क्या बात है, कैसे होगा। तो अपने यहां पर एक वाक्य सर्वत्र लिखा मिलता है, मन का ब्रेक उत्तम ब्रेक। हिंदुत्वना सौथी मोटा संगठन आरएसएसना आगामी 4 वर्षમાં 100 વર્ષ પૂરા થવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે અત્યારથી હિન્દુત્વને લઈને મેદાને ઉતરેલા આરએસએસના એક બાદ એક નિવેદન દેશની રાજનીતિમાં ઉચાટ લાવી રહ્યા છે। આવનારા સમયમાં ભાગવતના નિવેદનો દેશ માટે અને હિન્દુઓની એકતા માટે કેટલા ફળદાયી સાબિત થાય છે એ તો હવે સમય જ બતાવશે। बुद्धि से वाणी निकलती है, विचार से आदमी बोलता है, तो उस विचार में समाज के भेद बढ़ाने वाली भाषा नहीं चाहिए।
समाज को जोड़ने वाली भाषा चाहिए। બ્યુરો રિપોર્ટ સંદેશ ન્યૂઝ। દેશમાં જ્યારે વાત હિન્દુત્વની હોય, વાત જ્યારે ધાર્મિકતાની હોય, વાત જ્યારે શ્રીરામ કે તેની સાથે જોડાયેલી વસ્તુની કે જગ્યાની હોય, ત્યારે હંમેશા ભાજપ સરકારના ગુણગાન ગાવામાં આવે છે। પરંતુ આજે એક એવી જ વસ્તુની વાત કરવી છે જેને રામ અને રામાયણ સાથે જોડાયેલી છે। કરીશું આ વાત આ બ્રેક બાદ।